Namaste everyone, welcome to Anjan Kalash IAS, and here is me Arpita Prakash welcoming you to the kind of introductory session or an orientation session to the new course that I'm launching on the Anjan Kalash IAS platform. The course is titled as Comprehensive Course on the Physical and Indian Geography, as you can just see. This is primarily for the aspirants targeting UPSC Civil Services Examination 2025 or 2026. The reason of putting up with this course is that most of you asked me when I went for the poll on the channel about the three different subjects: modern Indian history, the current affairs course, or the geography course. Most or the majority of you voted for a geography course, and also you guys have been asking for quite a long time for me to come up with this course. So finally here we are. Start date of the course is from 15th of August 2024. The remaining details I'll just quickly share with you in the coming slides. But before that, these are a couple of, you would say, the features that you get in the course, on which I'll take each of the points in the future slides, okay? Before that, because firstly we need to understand what it is all about, and I really hope that this orientation session clears all your doubts with respect to the subject, how to prepare. Even if you, let's say, want to go for self preparation of this subject, you can actually use this content. ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, समझा देती हूँ, and then I'll just quickly take the things ahead. Firstly, this course is meant for the civil services examination, but it will also take care of all the other government examination, including the state civil services examination, which has geography as a portion. ठीक है, तो वो उसका ध्यान ऑलरेडी रखा जाएगा, बट प्राइमरीली दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द CSE. प्रीलिम्स कम्स मेन. ठीक है, तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के ओवरऑल होलिस्टिक कवरेज किया जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज टाइटल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एंड इट इज नॉट अ NCERT specific course. I would just request you to please continue with the whole lecture, because there are many things that I would be dealing towards the end, which is presented in a particular sequence. So you'll make more sense of what you are going to get here. I have covered every possible thing from my end. A broader syllabus, if we see for geography in general, ठीक है, सो वी सी की एक पोर्शन होता है जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी हम समझते हैं. फिजिकल ज्योग्राफी इज अबाउट, जैसे मान लो आपने यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, अदर सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो इट हैज़ अ वेरी मेजर कॉम्पोनेंट, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, प्रीलिम्स में इन दोनों में आते हैं. प्रीलिम्स में काफ़ी कुछ आता है, टर्मिनोलॉजीज एट्सेट्रा, विच इज़ अ वेरी हैवी ओरिएंटेड टॉपिक जो कि साइंस एंड टेक से ओवरलैप करता है, तो उसको हम अच्छे से कवर करेंगे. देन जियोमॉर्फोलॉजी, climatology, oceanography. Now all of these topics also have many things bifurcated within. For instance, I'm just giving you the briefings of it. ठीक है, क्योंकि अभी पूरा टाइम we cannot discuss each and every syllabus pointer, which I will do on the YouTube videos as well. The free YouTube videos, वो एक पूरी सीरीज आएगी अभी आपके लिए, लेकिन अभी के लिए just understand this point. तो जियोमॉर्फोलॉजी में क्या हो जाएगा, you will understand about the earth around you and the related things. अर्थ का इंटीरियर हो गया, अर्थ के ऊपर जो फीचर्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है. एंड देन यू वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट फिनोमेना हैपनिंग. ठीक है, लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं, रॉक्स, मिनरल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. प्लेट्स का मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स अगर आपने सुना हो. लेट्स से अर्थक्वेक कैसे आता है अगर किसी को समझना है, सो विल हैव टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी. ठीक है, वॉल्केनोज कैसे होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. Climatology, what is the climate of your place? Firstly, what is the difference between the term weather and the climate? Climate होता क्या है, climate के क्या factors होते हैं, what factors determine climate, and many other concepts within this. ठीक है, आप एल नीनो, ला नीना के बारे में पढ़ोगे, आप oscillations पढ़ोगे. आप अभी जैसे मान लो कि सबसे बेसिक सी चीज़ समझो, जैसे आप साइक्लोन्स के बारे में सुनते हो. साइक्लोन्स क्या होते हैं, एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, बहुत कुछ है. वॉट एवर आई एम टेलिंग इज़ वेरी वेरी ब्रीफ. ओशनोग्राफी है, ठीक है, आप टाइड्स के बारे में सुनते हो, है ना, क्या होते हैं टाइड्स, ओशंस के जो ओशन का जो लैंड फॉर्म है वो किस तरीके का होता है, और भी बहुत कुछ है जो इन चीज़ों में कवर किया जा सकता है. Now all of those things which are related to the physical features, ये वाला हो गया land and other things. ठीक है, ये हो गया आपका air and other things, because climate की बात करें तो मान लो wind system हो गया, distribution of wind etc. वो सब इसी में पढ़ेंगे. Oceans हो गया, water bodies related. तो all of this, and then this is of course about the celestial bodies. So all of these things primarily comes under the physical geography.
Now within the Indian geography portion you have इन्हीं का आप समझ लो extended portion है, and that is why what I have done is, I'll just share with you in the next slide, what I've done is to combine these elements in a very different manner. Usually people do this first and then do this first. I'll not do that. I will be linking things. For example, जब आपने बहुत सारी चीज़ें बेसिक समझ ली, now when I have written just universe etc, this is just to demonstrate for the time being. इसमें हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, लाइक लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, सो ऑन, ठीक है, सॉल्स्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, रोटेशन, रिवोल्यूशन एंड अ लॉट मैनी थिंग्स. जब हम इन सारे बेसिक्स को समझेंगे तो वॉट एवर स्पेसिफिक डिटेल्स वी हैव टू रीड स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया, हम उसको साथ लेके पढ़ लेंगे. सिमिलरली जब आप इसमें फिजिकल फीचर्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो उसका जो भी फिजियोग्राफी रिलेटेड पॉइंटर्स फ्रॉम द इंडियन ज्योग्राफी हैज़ टू बी डन. ठीक है, जैसे कि मान लो माउंटेन्स के बारे में आपको समझना है, प्लेन्स के बारे में समझना है, आपको प्लेट्यूज के बारे में समझना है, आपको घाट्स के बारे में समझना है, कोस्टल प्लेन्स के बारे में समझना है, आइलैंड्स के बारे में समझना है. तो हम ट्राई करेंगे कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग चीज़ें आपको मिल सके सो दैट यू फिनिश एट वंस. ठीक है, एंड द कॉन्सेप्ट्स आर देयर एंड यू जस्ट अप्लाई इट इन द केस ऑफ इंडिया. ठीक है, अब जैसे इसको हम समझेंगे तो यहीं से हम आगे रिवर सिस्टम, ड्रेनेज पे चले जाएंगे. व्हेन यू स्टडी मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्लाइमेटोलॉजी, हम इसको रिलेट सीधे कर लेंगे इंडिया का क्लाइमेट विच इज़ मानसून. ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे. देन नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, जो कि इन्वायरमेंट से ओवरलैप करता है, बट विल डू हियर ऑल्सो. सॉइल्स ऑल्सो ओवरलैपिंग है साइंस के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, अ लॉट मेनी थिंग्स. तो वॉट विल हैपन कि व्हेन विल डू जितना भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है इन दोनों सेगमेंट्स के बीच में, ठीक है, दैट विल डू, एंड द अदर चैप्टर्स जो भी बचेंगे वो हम खत्म कर लेंगे. द थर्ड मेजर सेगमेंट इन द जोग्राफी पोर्शन इज द इकोनॉमिक एंड ह्यूमन जोग्राफी. वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगी. रिसोर्सेज की बात होगी, आप देखो हर बार रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछते हैं. इंडस्ट्रीज की बात हो गई, ये सब इकोनॉमिक जोग्राफी में आता है ना. रिसोर्सेज में देखो बहुत कुछ आ जाएगा, दिस इज जस्ट अ ब्रॉडर टर्म. ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, बाकी भी नेचुरल, यहाँ तक कि नेचुरल वेजिटेशन एंड एक्चुअली वाइल्ड लाइफ, दिस ऑल्सो कम्स अंडर रिसोर्स ओनली. बट बिकॉज ये प्योर इकोनॉमी में आई एम नॉट कीपिंग, देयरफॉर आई हैव जस्ट केप्ट इट हियर. ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी कहाँ होती हैं, लोकेशन कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी है. ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, आपने सुना होगा ना, जैसे मान लो आयरन स्टील की अलग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की अलग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल की अलग है, सॉफ्टवेयर की अलग है. तो क्या है वो चीज़ें, वो समझेंगे. अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी वुड ऑल्सो इंक्लूड पॉपुलेशन, सेटलमेंट. ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक में ट्रेड, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. अभी अगर आपने लेटेस्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखे हैं अगर लास्ट 2-3 साल के, सो यू वुड बी नोइंग कि इस पोर्शन से काफ़ी कुछ पूछा जाता है. एंड देन अ मेजर पोर्शन इन योर जोग्राफी इज़ द मैप्स. नाउ मैप्स अब यूपीएससी बहुत तरीके से पूछती है. So it has the component of geography, it has the component of international relations, it has the component of history, it has the component of environment, it has many other components as well. International तो शायद मैंने बोल दिया. So the point है कि ओवरऑल मैप प्रिपेयर करना जोग्राफी में बहुत अलग तरीके से करना होता है, बट उसका बेसिस तो हमेशा वर्ल्ड जोग्राफी ही रहेगा ना. एंड वर्ल्ड विल इंक्लूड इंडिया एज वेल, क्योंकि हम अगर कॉन्टिनेंट वाइज जाएंगे तो इंडिया तो उसमें ऑलरेडी आ जाएगा जब हम एशिया की बात करेंगे. नाउ द पॉइंट इज कि व्हेन यू विल नो अ पर्टिकुलर लोकेशन इन द ओवरऑल मैप, ठीक है, और इसमें फिजिकल एंड आपका पॉलिटिकल बोथ आर काउंटेड, सो दैट विल ऑटोमेटिकली कवर अ लॉट मेनी प्लेसेस विच यू आर स्टडिंग इन न्यूज़, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के हों. अगर हिस्ट्री, हाँ, हिस्टोरिकल जोग्राफी के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, बट स्टिल इफ़ यू लोकेट द प्लेसेस वेरी केयरफुली, अगर आप ढंग से एटलस पढ़ोगे. नाउ हाउ दीज आर टू बी डन, उसका डिटेल विल बी कमिंग इन सम अदर वीडियोज़. आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू ऑन द ओवरऑल सिलेबस ऑफ जोग्राफी. सो क्या होता है कि मैप्स को जब आप एटलस में डिटेल में करते हो, यू कम अक्रॉस मैनी सिटीज़ एंड टाउन, जो कि आप हिस्ट्री के भी बुक्स में पढ़ते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टू रिलेट कि ओके दिस आई हैव स्टडीड. ठीक है, so this is the broader thing. Now what I have decided, now this is going to be very lengthy one as well, ऊपर से prelims and mains दोनों, because there are many things from the mains perspective which is not given in any particular book. And for geography we still do not have a particular book except the NCERTs. So क्या करा है मैंने, what I have decided कि I'll be bringing 2 courses. ठीक है, course 1 will have the physical and Indian geography because I told you I'll be seeing the overlapping portions. ठीक है, then course 2 will be human, economic
जोग्राफी एंड द मैप्स पार्ट ऑफ इट. इसमें मेजरली हम जोग्राफी पर्सपेक्टिव से सब कुछ कवर कर लेंगे, फिजिकल, पॉलिटिकल एट्सेट्रा. एंड देन मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स आपका इसमें ऑलरेडी कवर हो जाएगा बिकॉज वो स्टैटिक से रिलेटेड होता है. वट एवर कपल ऑफ थिंग्स कुड बी एडेड दैट आप अपने अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो. बट अभी फिलहाल वी आर नॉट डूइंग दिस कोर्स बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद जोग्राफी. And it will, the second course will come, of course, only depending on what your interest would be. If there would be demand, there would be supply from my side. But here, primarily, this is the first course that I'm taking because it will form actually, you say 80% part of your syllabus. ठीक है, मतलब 80 या 70 to 80 कह लो. ठीक है, प्रीलिम्स मेंस मिला के तो बहुत ह्यूज चंक है वो, ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा. Let us see quickly the main syllabus for geography which is in GS1. देखो, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी. तो ये जो मैंने आपको बताया फिजिकल ज्योग्राफी, इसी के अंदर इन सब का भी जो डिटेल है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल ऑल्सो हैव अ लॉट मेनी डिटेल्स. ठीक है, वो उसमें कवर हो जाएगा. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में. तो आप देखो रिसोर्सेज आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, देन इंडस्ट्रीज आ रहा है यहाँ पे. दिस इज द सिलेबस. आप डिटेल में बाद में पढ़ लेना, बट अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू लिटिल बिट ऑफ इट. Important geophysical phenomena like earthquake, tsunami, volcanoes, cyclone, etc. I just told you this is what we are going to cover in this. ठीक है, geographical features जो कि environment से related हो जाता है. तो ये आपका major portion है. It just looks 3 pointers, but it is not. Like ये इतना major chunk है that you cannot think about escaping. 2024 के prelims में तो geography was had a extremely high weightage. ठीक है, तो यू नेवर नो किस साल के प्रीलिम्स में कौन से सब्जेक्ट का वेटेज हाई कर देंगे, किस साल के मेंस में स्टिल एक्चुअली क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज चीज़ें डिवाइडेड होती हैं. फॉर इंस्टेंस योर GS1 हैज़ अ लॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम हिस्ट्री. नो विद इन हिस्ट्री देन यू हैव आर्ट एंड कल्चर, विद इन दैट यू हैव मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री. तो इसके अपने सिलेबस होते हैं. देन जोग्राफी एंड देन सोसाइटी. ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैज़ अ इट्स ओन शेयर, इट्स ओन प्रपोर्शन which is asked in the main paper. But prelims का कोई proportion fixed नहीं होता. Every year it varies and one subject is dominating. So therefore like 2024 had geography really as a dominating subject. ठीक है, पॉलिटी इकोनॉमी तो हर बार ही होता है, environment हर बार ही होता है, but otherwise. अब और हम थोड़ा क्या समझेंगे very quickly what all is covered in this particular course. So firstly I'll be taking the things extremely from basics. ठीक है, and will move to the advanced stage because I'll be assuming that you are not aware about the geographical concept क्योंकि मुझे उसी लेवल से पढ़ाना है. ठीक है, but it will definitely be from the UPSC CSE perspective. I'll not go haywire. मैं कुछ भी random नहीं पढ़ा लूँगी. And a quick understanding of what my geography concepts look like or my teaching on geography looks like, I'll just share something with you. Just hold on for a couple of minutes. The syllabus will include the things both from prelims and mains perspective. Notes definitely आपको देख के समझ आएगी होगा. I'm a completely note making person and those who are old students उनको तो पता ही होता है, चाहे वो हिस्ट्री की क्लासेस हो चाहे वो कोई भी क्लासेस हो, हम सब में नोट्स पे ही बात करते हैं. अगर मैं आपको रैंडम सैम्पल दिखाऊँ, ठीक है, ये मुगल एम्पायर के टॉपिक्स से है. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल बी सीइंग जहाँ पे बुक्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे बुक की क्लिपिंग्स होती है, जहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स को हाईलाइट करना होता है. बट मोस्टली आप देखोगे कि मैप्स भी इंक्लूडेड है. जहाँ से इंटरनेट क्लिपिंग्स की ज़रूरत है इंटरनेट क्लिपिंग इंक्लूडेड है. जहाँ से मेरे हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत है वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स इंक्लूडेड है. ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें मैं आपको मिक्स एंड मैच करके पढ़ाती हूँ. ये मेरा तरीका, ये मेरा नॉर्मल तरीका है. दिस इज़ हाउ आई ऑलवेज टीच. ठीक है, तो आपको नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा. बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू. और अगर कुछ सैम्पल्स देखने हैं तो जैसे ये भी एक नदर्न इंडिया करके एक टॉपिक था, उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ था अबाउट बीच के राजास के बारे में, उनकी डायनेस्टीज़ के बारे में. तो आप देख सकते हो कि हम हैंड रिटन प्लस जहाँ पे भी क्लिपिंग्स की ज़रूरत है मिक्स करके करते हैं. बट जोग्राफी में आई डू नॉट हैव दैट लग्जरी. सो जोग्राफी में वट एवर थिंग्स विल गो इट विल बी प्राइमरली डन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जस्ट अ मोमेंट. Yeah, it was just having some issue. So it will all have the note making thing from my side, and whatever images or diagrams or maps would be needed, that would be integrated in between. PYQ's discussion, a major component of it. Those who have attended my history lectures or NCERT lectures, you know that
there will not be any lecture, like hardly maybe any lecture wherein PYQs will not be discussed, else it is discussed in every lecture or at the end of the session and at the end of the topic, जैसा भी सूट करता है, but this is a major component, तो I will not leave you like that, ठीक है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स बोथ वुड बी गिवन इक्वल कंसिडरेशन, जहाँ जिसकी जैसे ज़रूरत होगी, बिकॉज दोनों ही पूछे जाते हैं. सो फॉर मी टू जस्ट टेल कि नहीं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होगा, गलती हो जाएगी, बिकॉज देन आप प्रीलिम्स में फैक्ट्स कैसे आंसर करोगे. और इफ़ आई विल जस्ट कीप टीचिंग यू फैक्ट्स, मेंस के आंसर को आप फॉर्मुलेट ही नहीं कर पाओगे इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. एंड ज्योग्राफी इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, सो हम दोनों रखेंगे डाउट सेशन. जैसे जैसे आपके क्लासेस बढ़ते जाएंगे, बीच बीच में आई कीप आस्किंग यू. ऐप में एक प्रॉपर बन जाता है, देखो ये ऐप की भी डिटेल्स है, आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से. अंजन कलश IAS ऐप, लिंक्स एंड एवरीथिंग यू गेट इन द डिस्क्रिप्शन. सो यू गेट टू हैव अ रेडीमेड एक आपका ग्रुप बन जाता है जिसमें ऑल द इनरोल्ड पीपल आर देयर. तो वहाँ पे आई कैन कीप आस्किंग यू, जब भी कोई बोलेगा हम उस हिसाब से, जैसे एक चंक खत्म हो गया सिलेबस का, विल कीप हैविंग द डाउट सेशंस. दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि आई कैन एड्रेस द डाउट ओनली इफ यू आस्क मी द डाउट. I hope you're getting that clarity. But I'm always there for you. आप इंडिविजुअल भी पूछ सकते हो, नॉट एन इशू. ज्योग्राफी है तो करंट का भी सेगमेंट रहेगा, एंड देयरफॉर विल हैव बोथ द स्टैटिक एंड द करंट अफेयर्स, ठीक है. नाउ प्लीज नोट a very important thing here, that many overlapping portions would also be covered here, which will help in disaster management and environment and ecology portion, ठीक है. चलो अब एक क्लास स्ट्रक्चर को जल्दी से समझ लेते हैं. सो आई विल बी टीचिंग यू द टॉपिक्स विच विल इंक्लूड फैक्ट, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, जहाँ मान लो ग्लोब दिखाने की ज़रूरत है और मुझे कुछ आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है. जैसे इफ यूल जस्ट सी दिस, तो दिस इज अ ग्लोब, इफ आई हैव टू डेमोन्स्ट्रेट एनीथिंग विद दैट हेल्प ऑल्सो आई डू दैट, ठीक है. नोट्स हो गए, ये सब हो जाएगा. देन यू विल ऑल्सो बी गेटिंग होम असाइनमेंट्स. वाई होम असाइनमेंट्स? बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू इन द एंड ऑफ द एवरी सेशन और लेट्स से एवरी टॉपिक कि आपको कौन से सोर्सेज को रेफर करना है, बिकॉज देर इज़ नो स्पेसिफिक सोर्स फॉर जोग्राफी, आई हैव टोल्ड यू. तो NCERTs ही हमारा प्राइम सोर्स रहेंगी. मेरे लिए आई विल टेक द एडवांस्ड बुक, अदर बुक्स ऑल्सो, बट यू डोंट हैव टू रीड एवरी बुक. तो वट एवर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज नीडेड दैट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम माई साइड, ठीक है. वो आप आराम से ट्रस्ट करके कर सकते हो. बट NCERTs खुद से पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट आप रैंडमली पढ़ने लग जाओगे, यू विल नॉट मेक सेंस, स्पेशली इफ यू आर अ बिगनर. So I will be giving you that home assignment to cover, but उसके पहले I'll teach you so much in the class already that reading would just be a cakewalk for you, so that you're psychologically satisfied that you have done the readings yourself. I hope that is clear. Any other thing also if needed, I would keep referring. And PYQs तो हम साथ में करेंगे, आपको भी बताऊंगी होमवर्क करने, खुद भी करवाऊंगी, जैसा होगा we'll discuss. And then if any important thing will come out from here, if any doubt would be here or any important PYQ जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है, all those things would be discussed in the next class, ठीक है. अब ये हर क्लास में नहीं होगा because it is all depending on as and when needed. Very quickly showing you something because अभी geography lectures, ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, उसके बाद भी आपके पास कुछ दिन का टाइम होगा for the lectures to begin, है ना, because the classes are starting from 15th of August. So what I suggest you, in case you just want to check on how do I teach geography, मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, आप वैसे भी चैनल सर्च कर सकते हो. एक्सप्लोरिंग लाइफ विद अर्पिता प्रकाश करके एक यूट्यूब चैनल है, ऑलमोस्ट 13K सब्सक्राइबर्स हैं उसमें, ठीक है. इफ़ यू कैन सी हियर, उस चैनल की एक प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी लेक्चर्स करके, ठीक है. उसमें 44 वीडियोज़ डाले गए हैं. इफ़ यू कैन सी 44 वीडियोज़. दिस वॉज द ज्योग्राफी लेक्चर का इंट्रो, एंड देन लेक्चर 1 एज आई सेड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम एक्सेट्रा. वो 44 लेक्चर्स आप देख सकते हो. उसमें सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी का सम खत्म है. तो हो सकता है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो. फर्स्टली इट वॉज मेड 2 years ago, सो इट इज़ नॉट अपडेटेड, ठीक है. सेकेंडली, बट इसमें भी बीच में क्वेश्चंस मैंने उस समय तक के करवाए हुए हैं. सो सेकेंडली पीपल कैन आस्क यू कि इफ़ यू ऑलरेडी हैव दिस फ्री कॉन्टेंट, वाई वुड वी गो फॉर द पेड कोर्स? तो एज आई सेड, ओनली जियोमॉर्फोलॉजी इज कवर्ड इन दैट, एंड एज आई हैव जस्ट शोन यू, geography includes a huge vast syllabus and everything cannot be covered on YouTube. So the whole proper series, fresh series, everything would, I'll not be using the same lecture. I don't even have those videos now. 2 years later, why would I have? So it would be proper fresh classes, but just it will help you, क्योंकि 44 videos हैं, तो I think you can understand कि आपको एक sample अगर समझना है, ठीक है. So you can just check any random video to understand about it. And this is also a topper acknowledgement video. I have had several toppers acknowledgements, लेकिन mostly they were in the form of personal messages which I don't usually bring out in public, but this was a public video.
wherein Mr. Pradeep Singh, who was AIR 26 in 2019 and AIR 93 in 2018, had talked about my NCERT's geography series only. इसीलिए मैंने सिर्फ अभी आपके रेफरेंस के लिए ये अटैच करा, आप चाहो तो ये भी सुन सकते हो, ठीक है? तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इफ़ दैट इज़ रिलायबल और नॉट, एंड देन इफ डेफिनेटली यू कैन गो हेड विद द क्लास. बाकी दीज आर द डिटेल्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. आप अभी जो देखो, ये जो नॉर्मल प्राइस है दैट इज़ ऑफ 4999, ठीक है? द नॉर्मल कोर्स प्राइस विच विल स्टार्ट मतलब फ्रॉम 15th August. लेकिन अभी बिकॉज फॉर द अर्ली बर्ड्स आई ऑलवेज गिव डिस्काउंट, जो प्राइस है आपको वो 4299 में मिलेगा. सो 700 रुपीज़ का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट है. बट दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली टिल August 14. तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड रियली एक्सपेक्ट एंड रिक्वेस्ट कि यू आर कंसिडरिंग दिस, कि आप टाइम लिमिट के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है इस कोर्स के साथ तो आप बढ़ सकते हो, क्योंकि एंड में मेरे लिए इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू एडजस्ट पीपल इंडिविजुअली. इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. So you get the discount till 14th August, and I hope you have got enough time in hand to even check these acknowledgements or check these videos to understand if you would really want to go ahead with the course. I hope that's a fair deal to say. And in the end, I would just want to show you what all other courses are available on my portal. I am teaching individually, तो आप उसको आराम से अंजन कलश IAS ऐप एक्सप्लोर कर सकते हो. लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन. और आप देख सकते हो कि स्टार्ट जब मैंने करा था लाइव नोट मेकिंग सेशन से करा था. दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सेशंस बाय पीपल. उस समय तो लाइव था, अभी रिकॉर्डेड है, बट इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल इफ़ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर दिस. द प्राइस इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच. तो इसमें बहुत सी चीज़ें कवर्ड थी. इसमें जो सब्जेक्ट्स कवर थे बहुत सारे, प्रीलिम्स मेंस के हिसाब से, PYQs इंटीग्रेशन, बहुत कुछ था इसमें. दिस कोर्स वॉज एक्चुअली वेरी अंडर प्राइज्ड इनिशियली. तो क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही थी, तो आप उसको चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो. देन दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री. एज आई हैव टोल्ड यू, पीपल आर ऑलरेडी लविंग दिस कोर्स. Polity NCERT, History NCERT. Now all of these courses are completed. This is the only course that I am launching right now. ठीक है, the comprehensive course on physical and Indian geography. So अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, so in the future I'll also come up with the human economic geography and the map portion, because I know maps में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, and I can deal with it very I would say amazingly, because I have been doing this for quite long and people have loved this. लेकिन उसके लिए आपको आपका ट्रस्ट और सपोर्ट दिखाना होगा. फॉर द टाइम बी वी आर स्टार्टिंग विद द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन physical and Indian geography. These are the details on your screen. I have already dealt with all of these things in earlier segment as well, but just quickly repeating: facts, concepts, note making for both prelims and mains, static current, learning techniques जो कि mind map charts के फॉर्म में आपको लेक्चर के थ्रू ही पता लग जाएगा. PYQs प्राइमरीली ऑफ UPSC CSE, बट कोर्स खत्म होने के बाद टुवर्ड्स द एंड हम डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के भी, जैसे घटना चक्र बुक वगैरह जो हो जाती है, उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे which can be used, that I'll also do. ठीक है, this I have promised in the ancient medieval course also, which I will add later, and then definitely the doubts resolution. So I hope this intro video has given you the insight on what I am going to bring in front of you, and I hope you are going to get benefit from this the whole thing. And if you really like to be a part of this initiative, I would request you, please, first you make your mind, first you decide seeing all of these things. ठीक है, everything is transparently given here, and then you decide, make your mind. But if you really want to enroll before the time, because then you get a discount. Else you have the freedom to enroll anytime. This is a 1-year course, मतलब 1 year validity आपको मिल जाएगी, and more importantly you can watch it n number of times. ठीक है, there is no limitation. आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो. ठीक है, बाकी I am always available for any kind of issues and queries. So thank you so much. I hope to see you guys in the sessions now. Take care till then. Bye bye.